first property says that the divergence of gradient of v is nothing but the Laplacian of v. अगर आप पहले gradient ले लो v का और फिर आप divergence ले लो तो आपको कुछ नहीं, आप you will get the Laplacian of v, right? So we just have to apply the definition. So you see divergence of grad v, तो हमें पता है gradient of v हम कैसे लिखते हैं? So this is gradient of v and divergence का मतलब क्या होता है? Del dot. So you see this is this. So this is gradient of v dot product with, I mean divergence is dot product with del again. Is it fine? So you just have to put the notations. Now हमें पता है what is this gradient, this del. Del is nothing but I into del by del x, j into del by del y, k into del by del z dot. And हमें पता है gradient of any vector v is nothing but what? See, gradient of v is always a vector. ये दिमाग में रखना है और हमें पता है gradient of v क्या होता है? Del v by del x into I cap plus del v by del y into j cap plus del v by del z into k cap. और अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? I डॉट I वाले कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा. सो del square v by del x square plus del square v by del y square plus del square v by del z square. And if you have seen the previous video, this symbol, if you have any vector v and this symbol del square v, just to revise. So अभी हमने किया ये, this is nothing but what? This is nothing but what? Del dot del of v. तो ये क्या होता है? This is double derivative of v with respect to x square, then double derivative of v y square, double derivative of v z square. So this is known as Laplacian. Is it fine? So we get the right hand side. Is it clear? Yes, ma'am. The next is curl of grad v is 0. Now curl of grad v, again हमें पता है curl क्या होता है? Curl is nothing but the cross product, right? Now grad v, so अगर मैं इसको open करूं, if I open this, right, this you have already seen in the previous exercises now, right? So हमें पता है gradient of v क्या बनेगा? What will be gradient of any vector v? हमें सिर्फ definitions लगा के इनको open करना है. This is del v by del x into I cap plus del v by del y into j cap plus del v by del z into k cap. Now what I want curl of this vector. Now curl of this vector grad v, और हमें पता है curl is nothing but what? Del cross grad v, and we know del क्या होता है? Del is nothing but I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z, right? और इधर क्या आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट विद ग्रेड v. ग्रेड v क्या था? del v by del x into I cap plus del v by del y into j cap plus del v by del z into k cap. आप चाहो तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा. अब हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो यू सी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इफ यू सी इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जस्ट इसको ताकि बार बार रेपिटेटिव ना हो, हम क्या करते हैं इसको समेशन फॉर्म में भी लिख देते हैं. सो इफ यू सी इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? ये पूरी चीज को क्या कैन आई राइट? समेशन आई, राइट, del by del x, राइट. अब जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? दिस ब्रैकेट क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस ब्रैकेट, देन प्लस दिस क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस होल, देन प्लस दिस क्रॉस प्रोडक्ट विद दिस होल. यस और नो? ऐसे ही खुलेगा ना ये? Yes, ma'am. Right. So this first term, so I del by del x, इसका क्रॉस प्रोडक्ट with the second term, so del v by del x I cap plus del v by del y j cap plus del v by del z k cap. नेक्स्ट टर्म हो जाएगी j cap del by del y क्रॉस प्रोडक्ट विद होल, फिर प्लस k cap del by del z क्रॉस प्रोडक्ट विद होल. तो ये सब कुछ बार बार लिखने की बजाय हम क्या करते हैं? हम समेशन डाल देते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल. लास्ट में सिमेट्री से हमें आंसर मिल जाएगा. इज इट फाइन? Is it fine? Yes, ma'am. अब मैं अगर इसको ओपन करूंगी तो यू सी हमें पता है I क्रॉस I कितना होता है? व्हाट इज I क्रॉस I? 0. 0. तो मैं इसको नहीं लिखूंगी, बाकी सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो बाकी इधर क्या बच गया? डेल स्क्वायर ऑफ v डेल x डेल y, और इधर कितना बन गया? I क्रॉस j. यस और नो? प्लस Yes, ma'am. del square of v
del x del z. This will be nothing but I cross k. Is it fine, बच्चे? Is it fine? Yes, ma'am. Now you see this one. This is this one. This is what we have written just now. So ये इसने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, this is I cross I. This term will become 0. तो वो आगे वो टर्म नहीं लिख रहा है और ये टर्म्स हमने लिखी हैं. So now let us move one step ahead. What is I cross j? What is I cross j? अगर आप हम I K क्या? So you see this is I j k. हमेशा ऐसे चलता है ये एंटी क्लॉकवाइज. So I cross j is k. तो इसकी जगह हम लिख देंगे k कैप. एंड I cross k. I cross k कितना होगा? उल्टा जा रहा है माइनस j. So एक के साथ प्लस साइन आ जाएगा, एक के साथ माइनस साइन आ जाएगा. Is it fine? Is it fine? यहाँ तक कोई डाउट? No, ma'am. अब अगर इस समेशन को हम ओपन करें, he is not opening it, let me open it. अगर हम इस समेशन को ओपन करें तो पहली टर्म तो यही रहेगी k कैप. मैं कैप नहीं लगा रही हूँ. del square v del x del y माइनस j कैप del square v del x del z. अब बाय सिमेट्री हम चेंज करते जाएंगे सेम ऑर्डर में. नेक्स्ट टर्म में k की जगह क्या आ जाएगा? k के बाद क्या आता है? k के बाद क्या आता है बेटा? हमेशा इस ऑर्डर में चलते हैं हम. I j k. ये देखो I के बाद j के बाद k के बाद I. तो you see k की जगह I लिख दिया. So this is del square v, right? अब del x की जगह क्या आ जाएगा? y और y की जगह आ जाएगा z. Is it fine? Is it fine? Again j की जगह आ जाएगा k, del square v, x की जगह आ जाएगा y, z की जगह आ जाएगा x. x की सेम ऑर्डर में चलना है हमने. इसी तरह ये x y z, x की जगह y, y की जगह z, z की जगह x. और लास्ट में अगेन फिर से क्या आ जाएगा? I की जगह j del square v, y की जगह क्या आ जाएगा? z और z की जगह आ जाएगा x. और इधर k की जगह आ जाएगा I del square v, y की जगह आ जाएगा z, z x की जगह आ जाएगा y. So now if you see this term and this term is getting cancelled, this term and this term is getting cancelled, this term and this term is getting cancelled. So everything is getting cancelled. So this is equal to 0. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम दिमाग में रखते हैं, क्वेश्चंस में हमें आसानी आती है. दिस फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज वी जनरली रिमेंबर. पहले ग्रेड लेके डाइवर्जेंस ले लेंगे तो लैप्लाशियन आ जाएगा. ग्रेड का डाइवर्जेंस लेंगे तो लैप्लाशियन आएगा. ग्रेड का कर्ल लेंगे तो 0 आ जाएगा. और कर्ल का डाइवर्जेंस लेंगे तो 0 आ जाएगा. राइट? ये क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं हम डायरेक्टली कई बार. राइट? सो आई थिंक थर्ड पार्ट यू कैन डू हैंडल योरसेल्फ एग्जैक्टली सेम. राइट? अब फर्स्ट और थर्ड पार्ट को यूज करके वी विल गेट द फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट. लेट अस मूव टू द फोर्थ पार्ट. राइट? सो व्हाट डज फोर्थ पार्ट सेज? यू सी थर्ड पार्ट हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? Yes, ma'am. Okay, now let us go to the fourth part and fifth part. So fourth part क्या है? डाइवर्जेंस का ग्रेड. एंड फिर फिफ्थ पार्ट में क्या है? कर्ल ऑफ v. तो अगर आप देखो प्लीज एक चीज देखो, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट आर टोटली द सेम. इफ यू सी व्हाट इज फोर्थ पार्ट? ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ v इज कर्ल ऑफ v प्लस लैप्लाशियन ऑफ v. तो यहां से अगर मैं कर्ल ऑफ v की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ v? What is the value of curl of v? कितनी आ जाएगी बेटा फोर्थ पार्ट से कर्ल ऑफ v की वैल्यू? बोलो जल्दी. What is the value of curl of? माइनस में हो जाएगा. हाँ, that's it. So you see this is nothing but grad of divergence of v minus Laplacian of v. So you see this is nothing but fifth part. So curl of v is nothing but grad of divergence of v minus Laplacian of v. So हमें ultimately क्या करना है? इन सारी terms को one by one खोलना है and then we will see. Right? So let us find the value of curl of v. Shall I start? Let us find the value of curl of v.
Is it clear बच्चे? Shall I start? Yes, ma'am. Okay, so curl of हमें पता है what is curl? Curl is nothing but the cross product. So पहले curl v. Now we know curl v is what? Curl v is what? Curl v is, we know v vector is v1 in general. In general, what is curl v? What is curl v? What is curl v? हाँ. Grad cross V. This is grad cross v, right? अब मुझे पता है ग्रेड कितना होता है. आई एम जस्ट डूइंग इट अगेन ताकि हमें याद हो जाए फिर से. ग्रेड कितना होता है? आई ऑफ डेल बाय डेल एक्स प्लस जे ऑफ डेल बाय डेल वाई प्लस के ऑफ डेल बाय डेल जेड क्रॉस वी. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं, तो ये कितना बन जाएगा? दिस विल बी आई ऑफ आई. सो दिस इज, इस पूरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है v का क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरे के साथ हो रहा है. तो बेसिकली दिस इज आई क्रॉस डेल v बाय डेल x प्लस j क्रॉस डेल v बाय डेल y प्लस k क्रॉस डेल v बाय डेल z. बेटा इज इट फाइन? इज इट फाइन बच्चे? बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. अब मैं फिर से अगर इसका कर्ल लूं, अगर मैं इसका फिर से कर्ल लूं, सो नाउ लेट मी टेक कर्ल ऑफ कर्ल v. सो अगेन ये क्या हो जाएगा? कर्ल क्या होता है? कर्ल इज नथिंग बट डेल क्रॉस कर्ल v का डेल. सो अगेन आई विल पुट द वैल्यू. सो इफ यू सी डेल कितना होता है? डेल इज आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड. इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? वो ऊपर वाली ब्रैकेट के साथ. सो आई क्रॉस डेल वी बाय डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल वी बाय डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल वी बाय डेल जेड. This is del v by del z, k cross. So again, if you open this bracket, so now if you see, so अब इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरी टर्म के साथ प्लस इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरी टर्म के साथ प्लस इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट पूरी टर्म के साथ. So we can just for simplification बार बार लिखने की बजाय let us put the summation. So this is summation of I, since cross product हमेशा vectors में होता है, so I cross, so I vector here is I cross, this is a scalar, so del by del x of this whole term. कौन सी term? I cross del v by del x plus j cross del v by del y plus k cross del v by del z. Is it fine? किसी को इस step में doubt? किसी को इस स्टेप में डाउट बेटा? हम सिर्फ हर ऑपरेटर को वन बाय वन ओपन कर रहे हैं, नथिंग एल्स. बेसिक डेफिनेशंस रिमेन सेम. बेटा क्लियर है? यहां तक कोई डाउट बेटा? No, ma'am. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. अब तुम मेरे से पूछोगे, जस्ट वन मोर इंफॉर्मेशन आई वांट टू गिव यू. सी यू विल आस्क मी कि यहाँ पे आपने इसको फर्दर क्यों नहीं लेके गए. देखो बेटा, जब भी ये जो क्वांटिटी है डेल v, अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था ये डेल v था. ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का होता है, तो स्केलर में क्रॉस डॉट कुछ इफेक्ट नहीं करता. बट अब यहाँ पे क्या है? कर्ल ऑफ v है. सो कर्ल हमेशा वेक्टर का होता है. सो v हियर इज अ वेक्टर. तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये यहाँ पे भी इफेक्ट करेगा बिकॉज v इज अ वेक्टर. दिस इज द रीजन हम इसको वन गो में नहीं हमने ओपन किया. वी हैव ओपन इट स्टेप बाय स्टेप. इज इट फाइन? शैल आई स्टार्ट? यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो यू सी हमने यहाँ तक कर लिया. सो नाउ वी विल जस्ट ओपन द समेशन टर्म. समेशन टर्म क्या बन जाएगी? सो दिस इज आई. फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? आई क्रॉस दिस टर्म प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा? I cross J with this term and then I cross K with this term, right? And since this is a scalar, right, so we can do one more step here. Since this is a scalar, इसका वेक्टर प्रोडक्ट पे कोई रोल नहीं होगा और ये सीधा यही ऑपरेट करेगा. तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं डेल स्क्वायर v by del x स्क्वायर, यहाँ पे डेल स्क्वायर v by del x del y and then del square v by del x del z, right? So one step we can move further and then we can open the bracket so we get this term. यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को?
यहां तक कोई डाउट किसी को? No, ma'am. Is it clear बच्चे? अब if you see what is this? What is this? This is scalar vector triple product. This is vector triple product. What was A cross B cross C? What was A cross B cross C? क्या होता था? A dot C A dot C into B minus A dot B into C. तो बस अब यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स है. सो इफ यू सी दिस इज A B C. Is it fine बच्चे, all of you? Yes, So ma'am. is A dot C into B minus A dot B into C. इसी तरह ये क्या हो गया अगेन. सो तीनों ब्रैकेट्स पे हमने इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू लगा दी. बच्चे क्लियर? Yes, ma'am. यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट बेटा किसी को? अब अगर आप देखो ये जो टर्म्स हैं, लेट मी सर्कल दिस. व्हाट इज दिस टर्म? व्हाट इज आई डॉट आई? 1. What is J I dot? What is J dot J? 1. राइट. सो ये जो सारी टर्म्स हैं ये हमारी कंबाइन हो गई. सो इफ यू सी यहां से तुम्हें क्या मिल रहा है? यहां से मिल गया तुम्हें डेल स्क्वायर V डेल एक्स स्क्वायर, राइट. एंड देन if you see we will get one more term of. अब देखो ये जो टर्म है यहां से तुम्हें मिल गया डेल स्क्वायर V बाय डेल एक्स स्क्वायर. अब बाहर समेशन चल रही है. जब आप इस समेशन को ओपन करोगे ये तो आ गई x की टर्म. x की टर्म आ गई डेल स्क्वायर V बाय डेल एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन. y की समेशन में कौन सी टर्म आएगी? y की जब आप y के साथ ओपन करोगे तो कौन सी टर्म आ जाएगी? कर्ल स्क्वायर V by कर्ल y स्क्वायर. कर्ल स्क्वायर V बाय कर्ल y स्क्वायर J डॉट J के साथ, फिर K डॉट K के साथ कर्ल स्क्वायर V बाय कर्ल Z स्क्वायर. तो यू सी ये सारी टर्म माइनस के साथ आ रही है और I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है. तो ये सारी टर्म क्या बन गई? डेल स्क्वायर V बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर V बाय डेल y स्क्वायर, डेल स्क्वायर V बाय डेल Z स्क्वायर. माइनस साइन कॉमन आ गया एंड वी नो दिस इज नथिंग बट लैप्लाशियन. सो इज इट फाइन? लैप्लाशियन वाली टर्म आ गई हमारे पास. लैप्लाशियन वाली टर्म आ गई गर्ल्स. Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू कोई डाउट यहां तक? तो अल्टीमेटली ये टर्म का रोल खत्म हो गया. ये टर्म प्लस प्लस करके बाकी टर्म्स हमें लैप्लाशियन दे देंगी. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट टर्म्स? व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टर्म्स? अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं. यस और नो? देखो व्हाट अबाउट दिस टर्म, व्हाट अबाउट दिस टर्म एंड दिस टर्म? आर दे गेटिंग कैंसिल्ड? Are they getting cancelled? बेटा हमने ग्रेडियंट को पिक्चर में लेके आना है. मुझे बताओ ये टर्म कैंसिल हो रही है या नहीं हो रही है? Yes, ma'am. Is it fine all of you? गर्ल्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Right. So this term, because you see scalar dot product is a very good. ये जो है बाकी सब कुछ तो तुम्हारी डॉट प्रोडक्ट को हम हमेशा कंबाइन करके लिख सकते हैं. We can always, it is commutative. अगर आपको याद हो हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी करी थी A dot B is always same as B dot A and plus जो बाकी क्वांटिटीज हैं we can always mute. So basically ये जो टर्म है इस टर्म को I can very easily write as I dot J. But this is one vector I can treat. So this is nothing but I dot J into this whole vector. So you see this term and this term cancels. Similarly अब यहाँ पे now let us come here, right? Let us come here, right? Again इस term को मैं क्या लिख सकती हूँ? This is del square V by del x square. तो हम एक del V by del x को बाहर लेके जा सकते हैं. So this is I del by del x, right? और दूसरे I के साथ हमने लिख दिया del V by del x को. Then I dot del V by del x. Again why we have written this? Because हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस बनानी है. तो डाइवर्जेंस के लिए हमें चाहिए del dot V. तो इसीलिए हम इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख रहे हैं. बेटा इज इट क्लियर? सिमिलरली ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट है दिस इज I dot K. सो हमने K को बाहर ले आए बिकॉज मुझे ग्रेड बनाना है. सो K del by del Z और जो बाकी बचा दैट इज I dot del V by del X. सिमिलरली थर्ड ब्रैकेट को हमने क्या लिख दिया? J del by del Y और जो अंदर बचा I dot del V by del X उसको हमने एज सच लिख दिया. बेटा इज इट फाइन? इस स्टेप में किसी को डाउट? इज इट फाइन? Yes, ma'am. अब मुझे एक बात बताओ. What will be the next term? What will be the next term? What will be the next term? So now
अगर टाइम खत्म हो गया तो कल कंटिन्यू यहीं से करेंगे। ओके अब देखो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म डेल v बाय डेल x, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म डेल v बाय डेल x एंड देन उसका डेरिवेटिव विद i। सो कैन यू हेल्प मी विद दिस टर्म, ये क्या बनेगा, व्हाट विल बी, सो इफ माय वेक्टर v is v1 i cap plus v2 j cap plus v3 k cap, so my question is what is del v by del x, so del v by del x तो बन जाएगा derivative of v1 with respect to x into I cap plus derivative of v2 with respect to x into j cap plus derivative of v3 with respect to x into k cap। अब अगर मैं आपसे पूछूं what will be I dot del v by del x, क्या बनेगा, what will be I dot del v by del x, ये कितना बन जाएगा, जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे यहाँ पे तो I डॉट I ये तो 1 बन जाएगा, तो del v1 by del x, then I डॉट j कितना हो जाएगा, what is I dot j, बेटा what is I, 0, then I dot k भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो if you see I dot del v by del x सिर्फ कितना बन गया, del v1 by del x, is it fine, is it fine बच्चे, is it fine? Yes, ma'am. तो you see यहाँ पे हमने I dot del v by del x की जगह क्या लिख दिया, del v1 by del x, यहाँ पे हमने लिख दिया del v1 by del x because same है del v by del x, this is also del v by del x, so this is del v1 by del x। बेटा is it fine, यहाँ तक clear है सबको? अब let us now open this bracket, let us this open this summation, we are done। so अगर हम summation को open करेंगे तो first term क्या आई, I del by del x del v1 by del x plus j del by del y del v1 by del x plus k del by del z del v1 by del x। अब जब हम y वाली टर्म लिखेंगे तो I की जगह k आ जाएगा और v1 की जगह क्या आ जाएगा, v2 और x की जगह आ जाएगा y। सिमिलरली j की जगह k आ जाएगा, y की जगह z आ जाएगा, v1 की जगह v2 आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा एंड k की जगह i आ जाएगा, z की जगह x आ जाएगा, v1 की जगह v2 आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा। सिमिलरली द थर्ड टर्म। गर्ल्स इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. Now let us combine the I terms, let us combine the I terms। so you see एक तो I मुझे यहाँ मिल रहा है, right, so I del by del x, I del by del x, I del by del x, तो ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, del v1 by del x plus del v2 by del x plus del v3 by del x। सिमिलरली j वाली टर्म आ जाएगी, सिमिलरली k वाली टर्म आ जाएगी, तो हमने बार बार रिपीट करने की बजाय समेशन लिख दिया। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right, now what is this, what is this, what is del v1 by del x plus del v2 by del x plus del v3 by del x, ये डाइवर्जेंस ऑफ v नहीं होती, डाइवर्जेंस ऑफ v is nothing but what, del dot v, तो del v1 by del x plus del v2 by del y plus del v3 by del z, this is nothing but divergence of v। और बाहर क्या आ रहा है, summation I into del by del x। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या बन रहा है, I del by del x of divergence of v plus j del by del y again divergence of v plus k cap again del by del z divergence of v। so you see आपने क्या किया है, आप del by del x ले रहे हो किसी एक क्वांटिटी का, divergence of v divergence of v divergence of v, so you see this is nothing but what, this is nothing but gradient of divergence of v। ग्रेडियंट हम ऐसे ही लेते हैं, इज इट फाइन? ग्रेडियंट क्या होता है, del v I cap into del v by del x plus j cap into del v by del y plus k cap into del v by del z। अब यहाँ पे del की जगह क्या है, I mean v की जगह क्या है, divergence of v, so this is nothing but gradient of divergence of v, so ultimately we get this one। so from here what is the value of gradient of divergence of v, this is curl of v plus del square v। is it clear? is it fine? Yes, ma'am. Right, so okay, I'll stop here, so we will start here from tomorrow। so please parallelly start solving your third A exercise, those go through all the examples, CP1 online में offline में जैसे भी